پر نہیں رک سکتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں رونا شروع ہو گئی کہ میرے لیے اب میرے ماں باپ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے. تو میں ایسا ہوا کہ جیسے ایک بیٹی بس شادی کر کے بس ودا ہو رہی ہے. تو میں ایسے لگ رہا تھا قسم سے. کبھی میں بالکل ہی نہ مجھے کہ امی نکال رہی تھی جیسے بھائی وغیرہ نکالنا شروع ہو گئے. کبھی چلو اب تم ہماری سکی نہیں رہی. تو میں بس ایسے بھی رہنا بہت مطلب اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہماری نہیں رہی. لگی اس کو دے دیے ہمیں بھی دو. میں نے کہا حد ہوگی. مطلب پھر میرے ساتھ میرے ہی بہن بھائی بدماشی کرنا شروع ہو گئے. میرے تینوں بھائیوں نے مجھے ایک فون کال نہیں کی. ان کی جو چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں بے شک ان کی بیویاں اس طرح انہوں نے کیا, میرے بھائیوں نے تو نہیں نہ کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ نہ ہو کہ آپ بھی کچھ ایسا ہی کرو. خیر میں نے ان بھابھیوں کو بھی کبھی نہیں کچھ کہا. دیکھو تمہارے سامنے اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو بھئی آج میں اپنی ہونے والی بھابھی کو یہاں پر اپنے ساتھ لے کے بیٹھی ہوں. یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہے. تو کچھ سوال جواب بھی میں اس سے کروں گی. آپ سب کو میں کچھ باتیں کچھ چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کی فیملی میں کیا ہوا. اسی کی زبانی میں آپ لوگوں کو سب کچھ سنانا چاہتی ہوں. اور انشاءاللہ اس کو کیمرے کے سامنے بھی میں لے کے آؤں گی, آپ سب کو دکھاؤں گی. آؤ گی نا؟ اچھا تو جلدی سے سٹارٹ لیتے ہیں. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. میں بھی ٹھیک ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیبو کی روشنی. تو بھی میں ذرا پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوں. میں بیٹھی تھی بیڈ کے اوپر تو میری کمر میں ایک دم نا شدت کا درد شروع ہو گیا. تو کچھ میرے ویورز مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنا نمبر دیں. یہاں پہ اپنا نمبر لگا رہی ہوں, جس کو چاہیے آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تو ویڈیو کو کنٹینیو دیکھیں. پھر میں نے چیئر لی اور چیئر کے پیچھے ابھی جو نا اس کے ساتھ میں ایسے لگ کے بیٹھی ہوں. میں آگے آتی ہوں نا تو پھر میری کمر میں درد ہو رہا ہے, اس لیے میں تھوڑا ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ جو ویڈیوز لگائی تھی نا ایک دو, جس میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی کی شادی کرنی ہے. پھر ایک میں نے بتایا تھا کہ بھئی آپ کون ہو. ٹھیک ہے, جو بھی تھا آپ کا وہ ساری چیزیں میں نے بتائی تھی. اس میں کچھ لوگوں نے مبارک دی آپ کو اسلام قبول کرنے کی. زور سے بولو نا. خیر مبارک. تو وہ سب مطلب خوش ہو رہے تھے. میری آڈینس جو میرے ویورز, میری یوٹیوب فیملی, میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں, جو مجھے دیکھتے ہیں, میری باتوں کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے آپ لوگ کو مبارک دی ہے کہ اسے مبارک دیں کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے. تو بہت شکریہ. وہ بول رہی ہیں آہستہ آہستہ بول رہی ہے. میں تو یہاں پر بولتی ہوں, میری تو آواز بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے. میری امی میری کہندی ایتھے بول دی چوک جیدی آواز جاندی, آہستہ بول. میں امی میرا گلا ہی ایسا ہے, میں کیا کروں. تو امید ہے کہ آپ سب کو پہلے بھی آپ سب کو جو میں نے بات بتائی آپ سب کو اچھی لگی, اور آگے بھی انشاءاللہ. اور کافی سارے ایسے کامنٹس تھے جن لوگوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ سب کا. لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. جی آمین جی. اللہ پاک جو ہے ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے, اس کی بھی مشکلیں آسان کرے. ابھی 1 ویک سے بچی میرے ساتھ میرے گھر میں رہ رہی ہے. ٹھیک ہے, 1 ویک سے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ رہی ہے. جس دن ہم پکنک منانے گئے تھے اس دن بھی یہ لوگ یہاں تھے, سمی کی امی اور یہ لوگ یہاں گھر پر تھے. اور میں نے کہا تھا چلو, تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی میں نے نہیں جانا, میرا موڈ نہیں. تو خیر ہم لوگ چلے گئے. اور ابھی چلے کچھ کوسچن میں اس سے کروں گی, کچھ چیزیں میں اس سے پوچھوں گی جو کہ مجھے بھی کلیئر ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں مجھے بھی نہ پتا ہوں. تو کچھ مطلب ہر چیز کا جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ تھوڑا سا چلو لوگوں کو بھی ہم بتاتے ہیں. جی وہ میں نے تھوڑا سا اونچا بولو نا. ایسا قبول کیا تھا. یہ کیا نام ہے, زیارت ہوئی تھی مجھے 3 دن لگاتار زیارت ہوئی تھی. 3 دن زیارت ہوئی تھی حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے, ان کو ہمارے پیارے نبی حضور پاک کی زیارت ہوتی رہی 3 دن, اور اس کے بعد
اس نے فیصلہ، آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ میں نے پھر صبح اٹھی ہوں تو میں نے ایک دم جا کر اپنی فرینڈ کو میں نے بولا کہ میں نے یہاں یار میں تو کرسچن ہوں، ہاں جی، تو آپ مسلمان ہو تو مجھے کیوں مکہ مدینہ نظر آ رہا، تو اللہ کا گھر نظر آ رہا تھا خواب میں؟ خواب میں۔ اچھا، تو جب میں نے یوں جب تیسرے دن 2 دن آئی ہے، پھر تیسرے دن جب آئی ہے تو میری جو زیادہ تھی وہ کلیئر ہو گئی تھی۔ اچھا، تو میں پھر ایسے دیکھتی ہوں کہ مکہ مدینہ کے آگے پر کچھ آدمی ہیں وہ گھوم رہے ہیں، پرانے وقت کا مجھے نظر آیا نا اچھا، اچھا، مکہ مدینہ۔ اچھا، تو پہلے کچا سا کہتے تھے ہوتا تھا، وہ نظر آیا وہ آپ کو؟ نظر آیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اسلام کو قبول کر کرنا۔ لوں۔ اچھا، میری فرینڈ نے پھر بولا مجھے، کہتی کہ سیم یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا، کہ آپ یہ کر لو۔ اسلام قبول کرنا ہاں، یہ چاہتی کر- ہو، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، تو پھر میں نے کر لیا، اور میں نے کسی کی بھی کوئی بھی نہیں لیا، مجھے کافی لوگوں نے کسی سے بات چیت مشورہ نہیں لیا، کیا، فیملی کو نہیں کسی بتایا، کو نہیں۔ خود کی مرضی سے جا کے؟ میں نے خود جا کے بھی مسجد میں گئی، میں مسجد میں جا کے وہاں پہ میں نے قاری صاحب سے بات کی، پھر قاری صاحب نے کہا کہ آپ فوراً اسلام کلمہ قبول کر ہاں لو۔ جی کلمہ پڑھیں۔ اچھا جی، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، پھر انشاءاللہ کافی انہوں نے مجھے ہر چیز، ان کی وائف نے مجھے کافی سمجھایا بتایا، صحیح۔ جی تو جی ان کو اللہ کے گھر کی زیارت ہو رہی تھی، ہمارے خانہ کعبہ کی ان کو زیارت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سب لوگ سبحان اللہ کیجیے گا، کیونکہ یہ چیزیں بہت کم لوگوں کو ایسے خوابوں میں آتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اسی کو خواب میں آئے گی، بے شک وہ کوئی بھی ہو، جیسے جن میں سے ایک یہ ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے اسلام جی۔ قبول کیا۔ اس کے بعد پھر آپ قاری صاحب لوگوں کے ساتھ آئی، گھر والوں کا پہلے تو بتاؤ نا کہ گھر جب آپ اسلام قبول کر کے گئی ہو تو ان کا کیا ریئیکشن تھا، آپ کی فیملی کا؟ ان کا ریئیکشن ایسا تھا کہ بس پوچھے نا، وہ تو بالکل ہی، امی نے تو بالکل میری جو تھے والدہ، انہوں نے مجھے تو فوراً ہی کہ امی فریج کے پاس کھڑی تھی، اچھا، ہاتھ میں برف کا کولا کھڑا تھا۔ ہاں جی، اچھا، وہ امی نے پکڑ کے میرے بازو پہ مار اچھا، ہاتھ پہ۔ میں نے بڑے جوش سے، مجھے ایسی ہمت اللہ تعالیٰ نے دی کہ میں نے فوراً ہی امی کو بولا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے اب چاہے آپ جو مرضی کرو۔ کریں۔ تو کہتے کہ تم یہاں پہ نہیں رک سکتی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رونا شروع ہو گئی کہ میرے لیے اب میرے ماں باپ مطلب میرے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ تو میں ایسا ہوا کہ جیسے ایک بیٹی بس شادی کر کے بس ودا ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ایسے لگ رہا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا قسم سے، کبھی میں بالکل ہی نہ، مجھے کہ امی نکال رہی تھی، جیسے بھائی وغیرہ نکالنا شروع ہو گئے، کبھی چلو اب تم ہماری سکی نہیں رہی، تو میں بس ایسے بھی رہنا بہت، مطلب اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہماری نہیں رہی؟ ہماری نہیں رہی۔ ہاں میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گیا کہ دیکھو نا، ایک اپنی ماں اور اپنے بھائی، وہ مطلب گھر سے نکال دیا انہوں نے۔ پھر 18 سال کی تھی ابھی میں، تو بس تو اس کے بعد آپ قاری صاحب لوگوں کے گھر آئی ہو، پھر انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ان کے ساتھ؟ جی 2 دن رہی ہو نا ان کے ساتھ؟ جی ہاں جی، 2 دن ان کے ساتھ رہی ہوں، پھر اس کے بعد ادھر انہوں نے آپ کا بتایا، پھر میں ادھر آ کے گھر پا گئی۔ یہاں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، اپنا گھر ایسا ہی جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی، سیم ایسے۔ تو جب یہاں آئی ہے تو مجھے ایک دفعہ مطلب تکلیف تو ہوتی ہے نا، میں بھی عورت ہوں نا، کہ اپنا گھر چھوڑ دیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب اگر کبھی وہ تم شادی کر لیتی ہو، اگر وہ آپ سے ملنا چاہیں تو آپ ان سے ملو گی؟ نہ ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان سے ملو، آپ ان کے گھر میں جاؤ، وہ آپ کے ادھر گھر میں آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پتا وہ جب دیکھیں کہ آپ خوش ہو، آپ نے شادی کر لی ہے، آپ ایک اچھی فیملی میں رہ رہی ہو، تو کیا پتا وہ آپ سے مل لیں۔ ایسا بھی تو ہو بھی سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان جب غصے میں ہوتا ہے، جب تو اس کا کوئی ریئیکشن یا اس کا فیصلہ اور ہوتا ہے، تو جب انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، تو اس کا پھر میرے خیال میں دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو تو آپ کی فیملی کا پتا ہوگا کہ وہ کیسے ہیں، کیا وہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ میری بیٹی کو نکال دیا، جوان بیٹی ہے، کہاں پہ جائے گی، کہاں دھکے کھائے گی، تو بھائی تو بالکل ہی نہیں آنے دیتے تھے گھر پہ، گھسنے نہیں دیتے تھے۔ امی نے کہا کہ تم میری وجہ سے یہاں پہ آتے، جب میں بھی نہیں ہوں گی تو کوئی بھی نہیں، تو واقعی میں یہی بات ہوئی، اب دوبارہ میں پھر نہیں دیکھ۔
दोबारा फिर नहीं गई, नहीं गई, कभी उनके साथ रब्ता नहीं किया? नहीं नंबर वगैरह कुछ भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था मुझे। भाई को मैं अच्छा। कॉल करती थी, अम्मी का से अम्मी बीमार थे तो मैंने कहा कि भाई मुझे अम्मी से बात करवा दो, तो ब्लॉक कर देता था नंबर मेरा। अच्छा, बात भी नहीं करता था बात भी आपसे? नहीं करवाने देता था। फिर आपका अम्मी, अपना भाई? मेरा सका भाई है। तो ऐसे भी बहन भाई होते हैं और ऐसे भी होते हैं कि मैं अपने बहन भाइयों के बगैर रहती नहीं, रहती नहीं। ऐसे भी होते हैं। तो काफी साइड स्टोरी भी है अंदर से, अगर देखो किसी के दिल को फरोलो तो काफी तकलीफ दे भी है ये चीजें और ये बातें, ये सब कुछ है। लेकिन इंसान है ना, इंसान क्या करे। और इसने जो फैसला किया, इसको जो जियारत हुई उसके बाद, तो आप लोग भी बताइएगा। आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी मुझे कमेंट्स में सब ने बताया कि आप लोगों ने अच्छा किया, नेक काम किया है, इस्लाम कबूल करने के लिए मुबारकें दी हैं। उसके लिए आप सबका भी व्यूअर्स बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं कहूंगी कि मजीद इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको इसकी नई जिंदगी में ये कदम रखने जा रही है, अभी रखा नहीं है, अभी हम भी सोच क्या फैसला कर लिया तो ये रखने जा रही है। उसके लिए इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां पैदा करे। ये मेरे सामने यहाँ पर बैठी हुई है और इसको सब पता है। मेरे भाई को आपने देख लिया है, हाँ जी, बच्चे देख लिए जी हैं, हाँ जी, उसकी मिसेस देख ली है, मिल लिया है, जी हाँ जी, पास रख लिए हैं। यहाँ बे के घर में हम सब लोग रह रहे हैं, अभी सब वो ऊपर सो रहे हैं, बच्चे भी, उनकी मामा भी। कुछ बच्चे हमने पीछे वाले कमरे में अभी बंद किए कि बाहर ना आना, हमने वीडियो बनानी है। फिर बच्चे बीच में आए तो फिर डिस्टर्ब करते हैं, फिर कोई ना कोई बात वो समझ नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ, मेरा दिमाग ही इतना को है। फिर इसको मैंने कहा कि यहाँ तुम बैठो, मुझे कुछ क्वेश्चन आपसे करने हैं, तो आप जो है ना वो चीजें थोड़ी सी यहाँ पे बताना सबको। और आपकी अगर शादी मेरे भाई के साथ हो रही है, हो जाती है, जी अल्लाह करे, अल्लाह पाक आपको जो खुशी नसीब करे, उसमें आप खुश हो, हाँ जी, आपको कोई किसी किस्म की परेशानी, बिल्कुल नहीं, या हमने तो नहीं आपको मजबूर किया कि आप करो, नहीं नहीं, ऐसा अपनी कुछ भी मर्जी नहीं। से कर जी हाँ रही जी, हो, मैं अपनी मर्जी से, आप बच्चों को संभाल लोगी। जी हाँ जी, सब मेरी ऑडियंस कहती है कि बच्चों को संभाल लेगी, कहीं ऐसा ना हो। देखो आपको तो नहीं पता, तो हमें पता है कि सतीले माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों की केयर नहीं करते, प्यार नहीं देते, तो कहीं ऐसा ना हो वो बेचारे, तो बच्चे तो यतीमों जैसे बच्चे, यही जैसे उनकी माँ की हालत है तो वो यतीमों जैसे बच्चे हैं। उनको तो जो कुछ संभालेगा क्या पता हो उसके बदले में कितनी खुशी खुशी मिले। मिलेगी। मैं तो क्या नाम है अपनी जैसे इस्लाम कबूल किया तो मैंने तो कभी भी किसी का बुरा कभी भी नहीं किसी का सोचा, कि मैं अपने दिल से करती हूँ सबके साथ। नहीं सोचना भी चाहिए, नहीं बुरा किसी का, अच्छा सोचोगे तो अच्छा तो आपका भी अच्छा होगा और दूसरे का भी अच्छा दिल ही होगा, नहीं, ठीक है। हाँ जी, दिल ही नहीं करता, कोई अल्लाह माफी दे। जैसे मैं और आपको पता है कि अभी 4-5 दिन से बच्चे यहाँ हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं परेशानी, आप उनकी केयर कर भी रही हो, मुझे पता है, ठीक है। जी आपके साथ अटैच भी हो रहे हैं। आज भी हो रहे हैं। मैं कहती हूँ आप ही है, आलिया कहती है नहीं मामा है। मैंने कहा आलिया वो आप ही तुम्हें मारती तो नहीं है? कहती नहीं मामा है। मैंने कहा नहीं मामा की बात नहीं मैं कर रही, मैं तो आप ही की बात कर रही हूँ। कहती नहीं वो मेरी मामा है आप। कहती वो आप ही है ना जो वो मेरी मामा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको आप ही मारती? मैं ऐसे उसको देख रही थी ये क्या कहती। कहती नहीं मैंने तो कोई भी नहीं मारता। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुम बेटी तो मेरी हो। कहती नहीं वो उसकी भी मैं बेटी हूँ। आपका मुझे कहती आप ऊपर थी, कहती कि मैं उसकी भी बेटी आलिया मुझे कहती। तो आपको उनके साथ रह के अभी 1 हफ्ते से तो मतलब वैसे आप फैमिली की तरह सबके साथ रह रही हो, आपको हमारे घर में आके हमारे साथ रह के आप क्या फील कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही हम रहेंगे? हाँ जी जरूर ऐसे ही रहेंगे। तो जाहिर यही है कि मुझे अपना एक नई दुनिया, नई जिंदगी मिल रही है और नई शुरुआत करने जा रही हो। तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ जिस हालत में भी मुझे रखेगा। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे भी जैसे आपके लिए आसानियां करे। हाँ जी, आपके लिए बहुत सारे लोग दुआएं करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करने वाले हैं। यहाँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत सारे लोग हैं जो आपके सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि आपका अच्छा हो। जो औरतें हैं, जाहिर एक औरत ही औरत का दुख तकलीफ समझ सकती है, और अपने घर से दूर होगी ये बच्ची तो हमारे पास आई है, हमारे साथ रहेगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उनसे भी ज्यादा
हाँ। प्यार दूं, उनसे भी ज्यादा अच्छा रखूं। मतलब मैंने इसको ये ऑफर भी दी थी कि आप मेरे साथ रहना चाहती हो तो आप रह सकती हो, मेरे बच्चों की तरह, मेरी बेटियों की तरह। बाकी शादी करना चाहती हो, देखो तुम अभी जवान हो, तो जाहिर है तुम्हारी जिंदगी तो अभी स्टार्ट हो रही है, तो तुम मतलब किसी के लिए अपनी ऐसी जिंदगी वक्फ कर दो, मतलब कोई मेरे जैसे इंसान के लिए भी ऐसे ही मेरे साथ रहती रहो तो ठीक है। नहीं, शादी का अगर तुम फैसला लेती हो, डिसीजन लेती हो तो कर लो। जैसे ही भाई का बताया तो इसने उसको देख के हाँ कर दी शादी के लिए, और मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन फिर मैंने इसको सारी बातें बताई कि भाई उसके बच्चे हैं, शादीशुदा है, बीवी है, सब कुछ। अभी तो सारी फैमिली इसके पास है। हाँ जी। सारी फैमिली अभी तो इसके पास है। उसको भी इसने, बच्चों की मामा को भी नहलाया धुलाया, उसके कपड़े पहनाए, उसके सर की कंघी की, उसके सर में इतनी ज्यादा जुएं थी। फिर आप लोगों ने, आपने और सोमी की मामा ने हाँ, मिलके ये सब मिलकर हमने, हम दोनों ने फिर उसका सर साफ किया, सर साफ कर दिया उसका। कपड़े धोए, फिर बच्चों के भी, उनके भी। तो माशाल्लाह। मतलब ये चीजें कौन करता है। मुझे ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत खुशी हुई है जी। कि आपने इस तरह किया। मतलब ना भी शादी का फैसला लेते तो फिर भी उसको, हम उसकी मैंने केयर ऐसे तो हमने करनी थी, करनी थी। क्योंकि हमारे घर में जब वो आई है तो उसकी हालत कितनी खराब थी। खराब थी, वही। बताओ जरा उसकी हालत बहुत कैसी थी। ज्यादा खराब थी कि ऐसे मैं तो उसको कि बाहर खड़ी थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कोई, लग ही नहीं रही थी किसी घर की वो है। स्मेल आ रही थी हाँ, तो इतनी बहुत ज्यादा, ज्यादा, बच्चों से भी बहुत ज्यादा। बच्चों से भी। और मैं इतनी परेशानी मुझे इस चीज की होती है कि भी देखो उसके माँ बाप, उसकी बहनें, उनको चाहिए कि चलो पागल तो होगी, ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया वो एक अलग बात अलग बात है, है। लेकिन बंदा उसको नहला तो सकता है। जाना। अब हमने नहलाया धुलाया, उसके कपड़े चेंज कराए, उसकी कंघी हमने की, तो ये चीजें वो भी कर सकते हैं, कर सकते, क्यों नहीं। मुझसे तो नहीं होती ये सब चीजें, लेकिन आप लोगों ने की तो वो उसकी बहनें, उनका हक बनता है कि वो करें। और अब हॉस्पिटल से वो लोग मना कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में इसको दाखिल ना करवाओ, तो ठीक, मेरे भाई ने भी कहा कि ठीक है हम नहीं करवाते, हम तो उसका बेहतर सोचते हैं, हम तो चाहते हैं कि उसका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ उसको इतना पता हो कि मैं घर में हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इधर रह रही हूँ, कोई घर का काम ना करे, कोई कुछ ना करे। अगर वो ठीक हो जाती है जी। तो फिर भी आप उसके साथ रहना आपको कैसा लगेगा, मुझे ये बताओ। मैं तो अभी मैं फर्क कोई भी नहीं समझती। कोई फर्क नहीं समझती, उसके साथ रहोगी आप, हाँ जी। कोई आपको परेशानी, कोई नहीं, मसला तो बिल्कुल नहीं। नहीं। मतलब बाद में शादी के बाद, वैसे तो उसका इलाज हम 2 साल से करवा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही। अगर हो सकता है कि आपके मुबारक कदम हो, आपके आने से वो ठीक, अंदर ही रहना, अभी बाहर नहीं आना, आपके आने से वो ठीक हो जाए तो फिर आप, नहीं, मैं फिर भी ऐसी रहूंगी। फिर भी ऐसे रहोगी पक्का। हाँ जी, पक्का। दुनिया सुन रही है आपको, हाँ जी, पक्का। कहीं ऐसा ना हो फिर बदल नहीं, जाओ। मैंने जो अल्लाह से वादा किया मैंने वही वादा आपसे भी कर लूँ। मैं जो बात कहती हूँ बस पूरी करती पूरी हूँ। करती हूँ। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे और ऐसा ही हो कि आप जो बात कर रही हो वो पूरी हो। और मेरी माँ की, हमारी सब फैमिली की दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह पाक आपको इस सफर में कामयाब करे और आप खुशी खुशी रहो और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। और यहाँ मेरे साथ रहना चाहो, अलहदा रहना चाहो, वो आपकी मर्जी है। जी, ये तो आपके भाई की डिसाइड। नहीं, भाई का कोई नहीं, भाई को तो कोई मसला मैं नहीं। तो चाहती कि मैं यहीं पे रहूं, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा कि हर जगह पे पता नहीं शायद ऐसा प्यार भी ना मिले, सीधी सी बात है। सही है। तो यहाँ पे ये है कि अगर वो घर पे नहीं है, हाँ जी, तो अम्मी है, सपोर्ट मैं तो होती है हूँ, ना। पप्पू है, भाई से कोई सौदा सामान लाना है, कुछ चाहिए, कुछ जरूरत है, तो वो सब भी आपको यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अपने घर में बंदा लहदा भी रहता है तो फिर भी बंदा खुद मैनेज कर लेता है। वो तो नहीं है, सारी दुनिया ही कर रही है, हम भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का घर आगे आगे चलेगा तो आप भी करना शुरू हो जाओगी, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही है। वो तो होता ही रहता है। और हमारे साथ भी ऐसे ही प्यार बना के रखना, इंशाल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि भाभी बनने के बाद बदल तो फिर पता चले नंद भाभी की लड़ाई हो रही। नहीं, ऐसा कभी। और मैं तो बड़ी गुस्से वाली हूँ, वही बात है। मैं बड़ी गुस्से वाली, मेरे पहले भी ये मेरे सारे बहन भाई, मेरी भाभी, इनके ऊपर मैं गुस्सा देखा, मैं अपने भाई के ऊपर कितना गुस्सा कर देती हूँ। आपने मेरा गुस्सा उसके ऊपर सुना ही होगा। हाँ जी, सुना। लेकिन मैं जायज करती हूँ, नजायज नहीं करती। जब कोई गलतियां करते हैं फिर मैं गुस्सा करती हूँ कि भाई देखो, अगर मैं सब कुछ उनको कर रही हूँ, मेरे बहन भाई माँ बाप का प्यार उनको दे रही हूँ, तो अगर वो गलती करेंगे तो उनको गुस्सा भी मैं ही करूंगी, ठीक है? तो आप
को मैं भाभी का इंशाल्लाह मैं छोटी बहन और बेटी समझूंगी, ठीक है। हाँ जी, मतलब मेरी जो पहले मेरी ये जो तीनों भाभियां है ना, हाँ जी, ये जो नदीम की मिसेज है, इसका तो ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। पहले मैं इसके साथ काफी नाराज थी, मेरी इस भाभी के साथ मेरी इसके साथ नाराजगी रही है। जी। तकरीबन 1 साल पूरा मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को नहीं बुलाया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इनको बुला लिया था, और उसके बाद फिर जो है मेरे जो वालद का जो हमारा घर था ना, हाँ जी, लाहौर वाला, जी। वो जब हिस्से वगैरह बांटे, तो वो ये जो मेरी भाभी है ना नदीम की मिसेज है, जो पहले जब भी जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, इसकी वजह से वो घर का बंटवारा हुआ था, ठीक है। इसी ने ही करवाया था। यही वहाँ दोनों बहनें, ये जो इसकी बड़ी बहन और ये दोनों बहनें, आपस में इनका गुजारा नहीं होता था। ये काम कोई नहीं करती थी, जो बड़ी बहन वो काम करती थी, ये खाना पीना खा के बर्तन उधर ही छोड़ के तो खुद साइड पे हो जाती थी। शायद कि उसके दिमाग में ना काम करता हो, लेकिन उस टाइम हमें तो ठीक लगती थी। और कुछ ऑडियंस कह रही थी कि अगर इस तरह था तो बच्चे क्यों पैदा किए, और जब बच्चे पैदा किए उस टाइम ठीक थी। हाँ जी, ये जो इसका लास्ट वाला बच्चा पैदा हुआ उसके बाद ये इसका दिमाग जो ना हिल गया, उसके बाद इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। ये समझ लो कि शायद वो आखिरी बच्चा ही था, और इसके सारे बच्चे ऑपरेशन के साथ हाँ हुए। जी, ऐसे ही। और बस 11 महीने 1 साल का सब बच्चों का इसका वक्फा है। 1 साल के अंदर अंदर का बच्चा होता गया है, और माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए। और उसके बाद ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। अल्लाह को क्या मंजूर था क्या नहीं था। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों को 1 साल नहीं बुलाया था। इनकी जिंदगी में जो इन्होंने 4, 5, 6 साल से शादी की है, 2 साल तो इनको मैंने बुलाया नहीं। 1 साल पहला जब इनकी शादी हुई थी छोटे भाई के और भाभी की, मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया था। मैं इनके साथ नाराज थी। इनकी शादी में भी मैं नहीं गई थी, ठीक है, मैं नहीं गई थी इनकी शादी में। और उसके बाद जब ये घर का बंटवारा करवाया था, हाँ जी, तो उस टाइम भी मैं नाराज हो गई थी। घर तो मुझे ही दे दिया था मेरे भाइयों ने, जी। मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मतलब इन लेडीज की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई लहदा हो, बिखर जाए। मैं चाहती थी कि एक जगह पर रह रहे हैं, रहें, बड़ा आसरा होता है एक दूसरे का। लेकिन इन लोगों ने इतना हमें डंडा चढ़ाया, घर का बंटवारा कर दिया, मेरे नाम कर दिया। मेरे भाइयों ने कहा जब पैसे होंगे दे देना। लेकिन मेरी इस भाभी जो ये वाली थी ना, इसने मुझे फोन पे कहा, इसने कहा तुम होती कौन, घर हमारा था, तुमने ले लिया, हमें पैसे दो, हमें पैसे। मेरे भाई ने मुझे एक बार नहीं कहा, जिस बात से मैं फिर उनको घर में घुसा ली थी। मुझे फोन पे कहने लगी, कहती अभी और इसी वक्त, कहती तुम बहुत, मुझे कहती तुम बड़ी बनती हो, ठीक है, खुद को पता नहीं क्या समझती, ऐसे इसने मुझे बोला। कहने लगी इसी वक्त पैसे जहां से मर्जी दो। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैं उस गुस्से को पी गई। मैंने अपने भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई क्या मसला, मुझे बताओ, पैसे तुम्हारी बीवी मांग रही, तुम्हें चाहिए, हिस्सा तो तुम्हारा है। हाँ जी, तो कहने लगी, मुझे कहती है कि हिस्सा उसका नहीं, हिस्सा हमारा है। मैंने कहा वो कैसे? कहती मैं उसकी बीवी हूँ तो हमारा हिस्सा तुम देती हो कि नहीं देती? मैंने कहा ओए अल्लाह, आज मेरे घर में ऊपर लेटी हुई है, ठीक है, मुझे कहती कि तुम हिस्सा दोगी कि नहीं दोगी? मैंने कहा दे रही हूँ। मैंने कहा ले लो। मैंने फौरन से इंतजाम किया। उसी दिन मैं बहुत जज्बाती में, बहुत गुस्से वाली, मैंने कहा अगर आज हिस्सा ना तुम लोगों को दिया तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगी, आज ही दूंगी। और मैंने उसी दिन पैसों का रेंज करके मैंने इनको पैसे भेज दिए। मेरे मुझसे जो छोटा है ना, उससे जो छोटा जीनत का पापा है, उसके बैंक अकाउंट में मैंने पैसे भेज दिए। वो मुझे कहता है ये किंदे पैसे ने? मैं क्या निकालो और अभी इसी वक्त उसको दो जाके। ये मेरा और भाई उस टाइम लाहौर में था, ये दोनों जने उधर, इन्होंने घर लिया हुआ था रेंट पे, उसमें थे ये दोनों मियाँ बीवी। इनको जाके पैसे दिए मेरे भाई ने। मतलब इतना मुझे तंग किया था ना, मैंने उस गुस्से से बुलाया नहीं इनको काफी टाइम। मैंने कहा मैं नहीं बुलाती, मतलब आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहो। इनकी वजह से फिर मेरी जो दूसरी भाभी थी, ये पप्पू की मामा, कहने लगी उसको दे दिए, हमें भी दो। मैंने कहा हद होगी, मैंने कहा हद होगी। मतलब फिर मेरे साथ मेरे ही बहन भाई बदमाशी करना शुरू हो गए। मेरे तीनों भाइयों ने मुझे एक फोन कॉल नहीं की, हमें पैसे दो। भाभीियों ने की, मेरे तीनों भाइयों ने मुझे एक दिन नहीं कहा कि हमें पैसे दो। मेरी भाभीियों ने कहा मामू उनकी बीवी है, तुम्हें मतलब वो क्यों कहे तुम्हें? मैंने कहा मेरे भाई मांगेंगे तो मैं दे दूंगी। कहती लो हम उसकी बीवियां, वो क्यों मांगेगा, हम मांग रही है, दो बस दो। मैंने कहा ये लो। तो मैंने दे दिए।
और फिर ऐसे है कि जब कुछ भी इनको कांटा भी चुभता है ना, कीड़ी भी चुभती है ना, मुझे ही फोन करते हैं, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, मुझे कहते हैं। लेकिन मेरे बहन भाई छोटे हैं, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इनकी छोटी छोटी बातें, अक्ल की कमी है जो भी ना, मैं उन चीजों को खल्ली बल्ली करती हूँ। मैं कहती हूँ दफा करो इन बातों को, ये मेरा खून है, मेरे साथ मिलके पैदा हुए हैं, मैंने खुद इनको बड़ा किया, इनको मैंने नहलाया धुलाया, इनकी शादियां मैंने की हैं, इनका सब कुछ मैंने किया है, तो मतलब मैं क्यों इनकी जो छोटी छोटी जो गलतियां, बेशक इनकी बीवियां इस तरह उन्होंने किया, मेरे भाइयों ने तो नहीं ना किया, ठीक है कि नहीं? अब ये ना हो कि आप भी कुछ ऐसा ही करो। खैर मैंने उन भाभीियों को भी कभी नहीं कुछ कहा, देखो तुम्हारे सामने इतना कुछ होने के बावजूद मेरे घर के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, ठीक है, बड़ी के लिए भी, छोटी के लिए भी, दरमियान वाली के लिए भी, सब के लिए, ठीक है, कभी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो है ना, मैं मैं भूल जाती हूँ। मेरी तरफ से कभी आपको कभी भी शिकायत नहीं। चलो इंशाल्लाह वो तो आगे आगे देखेंगे फिर क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर करे, बेहतर करे, जो भी हो अच्छा ही हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि अच्छा हो, और मेरी दुआ भी ये कि आगे आगे जो भी हो अच्छा हो। अच्छा बच्चों के लिए आज मैंने इतना सारा सामान खरीद दिया, वो कुछ चीजें इधर मैंने रखी है, कुछ फ्रिज वगैरह में रखी है, ठीक है, वो सारी चीजें जो ना फिर एक एक दो दो जैसे बच्चों को जो चीज चाहिए होना तो वैसे वैसे उनको देना, एकदम शापर बच्चों के सामने नहीं कर देना। वो जीम को पता है, जीम और सुम्मी को पता, बाकी बच्चे सारे ऊपर थे। जब सारा सामान आया तो उनको देते रहना। अभी वो क्लिप भी मैं आगे लगाने वाली, जो सामान सारा हमने मंगवाया और लिया और बच्चों के लिए शॉपिंग की, तो आप सबने बताया ना कि आप लोगों को हमारी बातें कैसी लगी, दोनों की, मेरी होने वाली भाभी की और मेरी छोटी भाभी, सबसे छोटी लाडली होती है, इसीलिए वो लाडली भी मुझे कहती थी कट पैसे मैंने दे दिए, ये ना बाद में तुम भी ऐसे ही करो। ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। वो एक मिसाल के अंदर पहले हंस के लाने ने तो बाद रो के दस में आपको पहले मुझे जब जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगी। चलें जी, अभी नेक्स्ट में इसकी शादी की शॉपिंग वॉपिंग जो होनी है उसके ऊपर भी हम डिस्कस भी करेंगे और लेंगे भी, किसके लिए क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या गिफ्ट हो रहा है, क्या ये वो सब कुछ। अच्छा तुम शाम को आई थी जानमाज लेने, ऐसा ही है ना? ये उठाओ, इसके अंदर जानमाजें पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से निकालो, मैं आपको देती हूँ। उधर से इसको उठाओगे ना ऊपर, तो माशाल्लाह से इस्लाम कबूल किया है, नमाज उसने सीखी है और पढ़ी और पढ़ी है, और जो चीजें को तुम्हें नहीं आती, नहीं पता, वो हम आपको साथ साथ सिखाएंगे, साथ साथ बताएंगे। इसको उठाओ ऊपर, तो इसके अंदर ना ये पड़ी, ये निकाल लो ऊपर वाली, इधर लाओ। अच्छा ये जो जानमाज है ना, ये मुझे वहां से आई थी, मेरी एक दोस्त उम्रा करने गई थी, उन्होंने मुझे ला के दी थी वहां से ना, मदीने से आई है जानमाज है, ठीक है। ये सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से ये आप ले लो। तो ये लो, मुबारक हो आपको। ये मेरा ख्याल है कोई गेस्ट आया होगा तो उसने यूज की है, मैं तो शेर पे ही पढ़ती हूँ। अच्छा। तो आप इस पे अपना नमाज पढ़ना, ठीक है, कुरान पढ़ना हो तो वो सामने वो इधर पढ़ा, वो तो अभी तुम्हें आता नहीं ना, मैं तुम्हें साथ साथ से बताऊंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी, नहीं तो इधर वो कारी साहब है, उनको हम कहेंगे कि आपको वो पढ़ाए, ठीक है, और आप पढ़ना चाहोगी तो आप पढ़ना, ठीक है। और आप सबने बताना कि आप सबको कैसा लगा, तो इंशाल्लाह आगे भी आप सबको शादी के व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। अभी हम देखेंगे कि हमने मतलब किस तरह से कैसी करनी है, कोई कितने गेस्ट होंगे, नहीं होंगे, शॉर्ट करेंगे या बड़ी करेंगे, तो वो देखते हैं, वो इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दे, और अभी जो बच्चों के लिए सामान है तो वो क्लिप आगे लग रहा है, वो भी देख लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ये देखें जी, ये बच्चों के लिए कुछ सामान मंगवाया, क्योंकि बार बार बच्चे दुकान पे जाते हैं इधर उधर चीजें लेने, तो ये घर पे मैंने चीजें मंगा दी। मैंने कहा जी कट के इतने खा दी जा, इसमें पता नहीं कौन कौन से डब्बे हैं। तो वो देखे पीछे टेबल भरी हुई है, अभी क्या है, ठीक है, क्या क्या है इसमें, अच्छा बहुत कुछ है इसमें, सब बच्चों के खाने की चीजें हैं। जबरदस्त। हमने शॉपर की इधर ही लाइन लगा दी।